Good morning, all of you. Friends, without wasting our time, I'm going to start our exercise of AP from Selena book. तो काइंडली आप लोगों ने जिसने भी पहले नहीं देखा है वो पार्ट 1 ऑफ AP देखे, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया है. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 16. See what question is saying. Find the 31st term of an AP. मतलब 31st T31 हमें फाइंड करना है. T31 we have to find. Next, what is given? 10th term of an AP. 10th term तो मैंने कैसे लिखने सिखाया था. जो लिखा हुआ है पहले उसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखो. T10. अब T10 equals to what we can write? A plus 9D equals to, it is given 38. Equation number 1. Next, T16 is given. 16th term equals to T16 will equals to 15 T. T16 को क्या लिख सकते हैं? A plus 15D. ये कैसे आया मैंने बेसिक में बताया है. is equals to 74. Subtracting equation 1 and 2. A plus 9D equals to 38. A plus 15D equals to 74. अब देखो यहाँ पर हम कैसे हम लोग करेंगे. ए को एलिमिनेट करना है. ए या डी को एलिमिनेट करेंगे तभी हमें एक वैल्यू मिल सकता है. तो हाउ वी कैन डू दिस. पहले हम लोग देखो ए प्लस था माइनस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए. तो इस तरह से ये एलिमिनेट हो गया. हियर 6 एंड व्हाट इट इज कमिंग नाउ minus 36. Minus cut. 36 divided by 6 will equals to 6. Therefore what we are getting? D, and D denotes for common difference. अब देखो D मिल गया तो हम किसी भी इक्वेशन में अगर रख दे इक्वेशन 1 या 2 तो वैल्यू ऑफ A मिल जाएगा. By putting the value of D equals to 6 in equation 1. And what is our equation 1? A plus 9D equals to 38. A plus 9 into 6 equals to 38. A plus 54 equals to 38. Therefore A equals to A minus 54. Now this will equals to 54. That means minus 16. So what we are getting here? A equals to minus 16. So this is your answer. Now see we have to find 31st term. अब देखो D मिल गया है, A मिल गया है. We can easily find 31st term. 31st term will equals to A plus 30D. A plus 30D. A plus 30D. अब हम लोग कैसे करेंगे? A plus A हमारा आया है minus 16 plus 30 into D हमारा आया है 6. D 6 आया है तो minus 16 118. that will equals to 164. This is your answer. Next, move on to next question. Question number, next we are going to take question number 13. Don't forget to like, subscribe and share and give suggestions in our comment box. क्वेश्चन नंबर 13. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है. एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है T2 प्लस T5 माइनस T3 इक्वल्स टू 10. अब देखो इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें A या कुछ इक्वेशन हमें मिल सके. What we can write is as T2 A plus D. What we can write as T5 A plus 4D. अब देखो माइनस हो तो हमेशा वैल्यू को ब्रैकेट में रखना क्योंकि अंदर वाले वैल्यू को माइनस से इंटू भी करना है. T3 तो what we can write A plus 2D will equals to 10.
a plus d plus 4d minus a plus minus minus 2d equals to 10, 1 2 2a minus a, 4 plus 1 5, 5d minus 2d equals to 10. Now see a and here plus 3d equals to 10. This is our first equation. अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, t2 plus t9 equals to 17. So we will write again t2 plus t9 equals to 17. Okay, वही सेम फॉर्मेट, t2 को हम क्या लिख सकते हैं a plus t और t9 को a plus 8t equals to 17. a plus a 2a 9d equals to 17. So this is our equation number 2. Now I think so you will solve it easily from equation 1 and 2. 1 and 2. Equation 1 is our a plus 3d equals to 10, 2d plus 9d equals to 17. ये आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है पहले, होप सो यू कैन सॉल्व. एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी भी a या d का वैल्यू निकालने के लिए सेम डिजिट को अपोजिट से इनटू करते हैं. जैसे मैं a को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो 2 नीचे है, ऊपर में 2 से इनटू कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 1 से इनटू कर दो. नाउ डू इट. 2a 2 3s 6d equals to 2 10s 20, 2 1s 2, 9d equals to 17. माइनस माइनस माइनस, सी प्लस माइनस माइनस, ये वाला साइन यहाँ पे आ गया तो माइनस साइन है, यहाँ माइनस आ गया तो 9 minus 6 is 3d and here is 20 17 minus 3. Therefore d equals to 3 minus 3 equals to minus 1. Therefore how much we are getting common difference? d is equals to minus 1. देखो अब d मिल गया है तो now we can easily find a by putting the value of d in equation. आप स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, मुझे माने 1 में रखने का, 1 में रखता हूँ. 1 इक्वेशन इज a plus 3d equals to 10. a plus 3 into minus 1 into 10, a plus minus 3 10, therefore plus minus minus, a plus 3d equals to 10. So here 10 minus 1 a plus here plus 30. Is it clear students? So how much we are getting? a equals to 30. तो देखो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और a भी हमें मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 19. आई एम इरेजिंग दिस. प्लीज वीडियो को पॉज करो और कोई भी डाउट हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स. I will again solve, and one facility I am going to provide, instant reply you will get on my YouTube. Question 19. The sum of, अब देखो इस तरह के इक्वेशन को कैसे बनाते हैं. सम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सम मतलब ऐड करना. अब किसका सम करने बोल रहा है? 4th टर्म एंड 8th टर्म का. तो देखो 4th टर्म को हम क्या लिखते हैं? T4 लिखते हैं. सम का मतलब प्लस, और बोल रहा है 8th टर्म को सम बनाना है ऑफ एन AP will equals to 24. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड द सम ऑफ 6th टर्म. अब 6th टर्म का सम करने बोल रहा है तो T6 प्लस T10 बोल रहा है तो T10 will equals to how much it is given? 34. And now what we have to find here? Find the first 3 terms of an AP. देखो स्टूडेंट्स यहाँ 3 terms of AP बोला है. That means you have to find the series. 3 terms of AP. This you have to find it out. So now solve it. T4 plus T8 equals to 24. T4 को क्या लिख सकते हैं हम? A plus
3d, T8 को क्या लिख सकते हैं, a plus 7d. Now solve it. A plus a, 2a plus 10d equals to 24. Equation number 1. Again, what it is given, T6 plus T10 equals to 34. T6 what we can write it as a plus 5d. Again T10 को क्या लिख सकते हैं, a plus 9d equals to 34. 14d equals to 34. Now देखो स्टूडेंट्स, होपफुली you have understood this. इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से a का वैल्यू मिल जाएगा और d का वैल्यू मिल जाएगा. जो भी a और d का वैल्यू आएगा उसके बाद सीरीज बनाना है. देखो हमें क्या बनाना है, AP फाइंड करना है, 3 टर्म्स ऑफ एन AP. तो क्या बताए थे मैंने, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, a बराबर लिख देना. सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस d. दिस थर्ड टर्म a plus 2d. This will be your answer. Therefore, what will be your series? First, this you will write it here, this you will write it here, and this you will write it here, dash dash. I think so. Now you can solve it easily. So last question we are dealing with, question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग डील करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है देखो, ये रिवर्स का क्वेश्चन है. ओनली वन क्वेश्चन इज गिवन इन दिस रिवर्स. क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझो पहले. विच टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज इज गिवन 21, 18, 15, -81. मैंने फिर से बताया, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं काइंडली सी, पहले वाले डिजिट को हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं. फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 21. उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है. T2 minus T1. That means what is T2? 18 minus 21. 18 minus 21, that is -3. Now this देखो, लास्ट में जब भी किसी भी चीज के साथ th टर्म नहीं लिखा रहे तो वो लास्ट टर्म कहलाता है. काइंडली सी AP part 1, you will get all the concepts. This is written as TN 81. and kindly फॉर्मेट जो भी मैं दे रहा हूँ उसे फॉलो करें इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100. TN फॉर्मूला वी विल पुट इट. देखो TN कितना है हमारा, -81. A हमारा कितना है 21. N कितना है, ओके, N वी हैव टू फाइंड. तो N को N ही मान लेते हैं. एंड D इक्वल्स टू -3. देखो -81 equals to 21. Now we have to multiply this. So first this by this and this by this. Plus minus -3n minus plus 3. Now -81, 21 plus 3, 24 minus 3n. 81. ये देखो इस साइड प्लस है, दूसरे तरफ जाएगा तो -24 -3n. देखो ये माइनस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस होता है, लेकिन वैल्यूज ऐड होते हैं. स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. मल्टीप्लाई करते हैं तब माइनस इंटू माइनस प्लस साइन आता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस और वैल्यूज ऐड हो जाते हैं. तो 505 इक्वल्स टू दिस. So now we can find easy value. 105 divided by -3 minus 13, 335. So n we are getting
35। देखो लेकिन इस क्वेश्चन में एक और बात कह दी गई है, कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो। बोल रहे कोई भी इस सीरीज में जीरो वैल्यू आ सकता है क्या। तो अब हम कैसे जानेंगे, तो अगेन वी हैव टू फाइंड tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a इज आवर 21 प्लस n को n ही मान लेते हैं, तो यू कैन राइट इट हियर वन स्टेटमेंट, लेट द nth टर्म ऑफ tnth टर्म ऑफ an AP इज n minus 1 and d will equals to how much we are getting, d is minus 3, 21 plus minus 3n plus 3, so how much you are getting, 21 plus 3 is 24 minus 3n, minus 3n. After that what we have to do, now you will just solve it. अब देखो क्या करेंगे हम, ये 3n इधर है, हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 24. Now easily we can get the value, 3 8s are 24. So 8th term of an AP will be our 0. Is it clear? You can write the statement 8th term of an AP will be equals to 0. हाँ, तो यही आप लोग को बोला गया, तो like this you can write the statement, thus 8th term of the AP is 0. Is it clear, students? I'm erasing this, so please don't forget to like, subscribe and share and support my channel. Now see, we are going to take last question of this exercise, that is question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ रिवर्स केस आपको दिया हुआ है। देखो इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, नाउ आई एम राइटिंग इन शॉर्ट बट यू विल राइट द फुल स्टेटमेंट। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 4, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, t2 माइनस t1 दैट इज 9 माइनस 4 इज 5, tn इज गिवन 254। लेकिन देखो अब एक स्टेटमेंट कहा गया है, फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म खोजना है लेकिन फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। ये देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया है, फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। देखो फ्रॉम द एंड से फाइंड करना है, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग। अभी तक हम लोग जो भी फाइंड करते थे फ्रॉम द बिगनिंग था, फ्रॉम द एंड नहीं। तो अब रिवर्स करने बोला है, तो व्हेन वी आर रिवर्सिंग द AP और द रिवर्स, व्हाट केस, ये सीरीज देखो हमारा सीरीज क्या था, वी विल राइट इट है 4, 14, डैश डैश 254। इज इट क्लियर? हम रिवर्स कर रहे हैं, तो ये वाला इधर आ जाएगा 254, डैश डैश, ये वाला उल्टा चला जाएगा 14, 9, 4। इज इट क्लियर? तो अब देखो रिवर्स किए हैं तो ये सारी चीज भी रिवर्स हो जाएंगी। तो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म देखो ये दिख रहा है हमको, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया। डी हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ +5 है, तो अपोजिट से है कि -5 आएगा। कैसे आएगा देखो, t2 माइनस t1, तो अब देखो t2 तो ये बन गया ना, अगर t2 माइनस t1 करना है तो 9 माइनस 5, तो यहाँ देखो -5 आ जाएगा। जस्ट रिवर्स है, तो ये प्लस था ये माइनस आ गया है। तो अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड, we know that Tn equals to a plus n minus 1 into d. Now see what is our Tn, Tn is 254, sorry Tn, yes Tn 4 plus n is how much we have taken, n we have to find, n plus 5, 254, 4 plus 5n minus 5, 254
-1 प्लस 5, ये माइनस में इधर आके प्लस में 255 equals to 5n. Therefore n equals to 255 divided by 5. 5 5s are 25, 5 1s are 5. Therefore n is equals to our 51. N is our 51. But what we have to find it here? The value of n. Yes. See what the question is telling. We have to find the 10th term of the series. 10th term of the series. So what we will do it again? What will be our 10th term? 10th term means T10 a plus 9d. A is equals to 4 plus 9 into d is how much? 5. D is how much? 5. 2. Oh, sorry guys, we have taken here 254. A is equals to 254. So a plus 9d. A is 254 plus minus this 254 minus 45. Now that will be our 209. So what is our T10? Therefore T10 is equals to 209. Is it clear, students? So like this we have completed our chapter. All the questions I have completed. Whatever homework I have given, kindly you do it, complete it. अब इसमें जो भी डाउट आता है kindly write in the comment box. Soon I am going to upload next exercise 10th B. देखो आप सभी को पता है लॉकडाउन बढ़ चुका है, पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करो. ये मत सोचो स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है. देयर आर वेरियस मोड्स नाउ. बहुत सारे तरीकों से अब आप पढ़ सकते हो. ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर पढ़ो, क्योंकि आपको ये अपना तैयारी करने का समय मिल गया है. अभी तक आप जिसमें कमज़ोर थे उस पोर्शन को अभी स्ट्रॉन्ग करो कि स्कूल जाते के साथ आप उसमें अच्छे से उभर कर आ सको और यू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स. बेस्ट ऑफ लक. Soon I am going to upload. Kindly like, subscribe and share. Signing off. Bye bye.